तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहमो दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोज़ मौजूद हैं। Students, I am taking all these contents of this chapter from the Punjab textbook board. In previous lecture, we were studying about the unit number 4, Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anha. First of all, I am giving you some introduction about the Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anha. Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anha was a daughter of Hazrat Abu Bakr Siddiq Raziyallahu Ta'ala Anhu, had great love for Islam and the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. She left no stone unturned to serve the and help the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. When he Sallallahu Alaihi Wasallam migrated from Makkah to Medina, Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anha was very wise and daring. She faced Abu Jahl very courageously and wisely when he came to her house in great anger. She Raziyallahu Ta'ala Anha was very kind-hearted and generous. When she inherited a garden, she sold it and distributed all the money among the poor and the needy persons. So, and her Asma Raziyallahu Ta'ala Anha will always be remembered for her courage. Her life would always be a beacon of light for all of us. The theme of the lesson is to know and appreciate how Muslim women stood with integrity and valor for the cause of Islam. Not only did they help the cause, but they were also and the role model for the entire Muslim Ummah. Most often, they were perfect examples of modesty, truthfulness, honesty, piety, bravery, and even generosity. So students, this was a brief introduction about the Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anha. Now we move on to the exercise. First one is about the glossary. In glossary, we are going to discuss about the difficult words, their meanings and synonyms. फर्स्ट वन इज़ रेफ्यूज। रेफ्यूज का मतलब होता है पनाहगाह, प्लेस ऑफ सेफ्टी, इंस्टेंटली, फ़ौरन, इमीडिएटली, कांस्टेंट, मुसलसल, रेगुलर, डिटेक्ट, पता चलाना, मालूम करना, टू फाइंड आउट, राइप, पुख्ता, मैच्योर, रिवील, जाहिर करना, इंकशाफ करना, एंड शो ऑफ। नेक्स्ट वन इज़ अबाउट द ओरल एक्टिविटी। ओरल एक्टिविटी का मतलब होता है कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपकी वोकेबलरी को इन्हांस कर रहे होते हैं या आपके बोलने की जो तरीका होता है उसको बढ़ा रहे होते हैं। तो यहाँ पर ओरल एक्टिविटी में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज़ डिस्कस द सैलेंट फीचर्स ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जो पर्सनैलिटी है, जो शख्सियत है, उनकी खसूसियात लिखनी है यहाँ पर हमने। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वाज द डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हैड ग्रेट लव फॉर इस्लाम and the Rasul sallallahu alaihi wasallam. She left no stone unturned to serve the Rasul and help the Rasul sallallahu alaihi wasallam when he sallallahu alaihi wasallam migrated from Makkah to Medina. Hazrat Asma radhiyallahu anha was very wise and daring. ये भी characteristic है. She faced Abu Jahl very courageously and wisely when he came to her house in great anger. She radhiyallahu anha was very kind-hearted and generous. When she inherited a garden, she sold it and distributed all the money among the poor and the needy persons. Next one is name some prominent होता है वाज़े शख्सियात। Women in today's world share their achievements. आजकल की दुनिया की कुछ मुमताज़ या बड़े जो ख़वातीन हैं उनके नाम बताएं, उनके कारनामे बताएं। In today's world, आजकल की दुनिया में which is often characterized by greed, selfishness,
selfishness and lust of power, we find many prominent Muslim ladies who have devoted themselves to the cause of Islam and who are making every possible effort for the welfare of the Muslim. आज की दुनिया में जो कि लालच, खुद गर्जी और इख्तियारात के लिए जुनून से इबारत है, हम बहुत सी मुमताज़ मुसलमान ख़वातीन को देखते हैं जिन्होंने इस्लाम के मकसद के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया. Some of the most prominent women are Nighat Hashmi and Alma Rahila. One of the greatest achievements of these ladies is that they have made many Muslim ladies live accordingly to the true spirit of Islam and have helped them get their just rights. इंतहाई नामवर ख़वातीन में से निगत हाशमी और आलमा राहिला का शुमार होता है. इन ख़वातीन के अजीम कारनामों में से एक ये है कि उन्होंने बहुत सी मुसलमान ख़वातीन को इस्लाम की हकीकी रूह के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए कायल किया और उनके जायज़ हकूक़ हासिल करने में उनकी मदद की. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कंट्रीब्यूशन कैन वुमेन मेक द सोसाइटी इन पाकिस्तान? पाकिस्तानी माशरे के लिए औरतों की क्या खिदमात औरतें अदा कर सकती हैं या दे सकती हैं? वुमेन अनडाउटेडली play a vital role in reforming our society. In Pakistan, women can make contribution to our society by working as teachers, professors, doctors, writers and social workers, etc. बिलाशुबा औरतें माशरे के इस्लाह में अहम किरदार अदा करती हैं. पाकिस्तान में ख़वातीन टीचर, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, मुसन्नफ़ीन और समाजी कारकुन वगैरह की हैसियत से काम करके हमारे माशरे के लिए खिदमात अंजाम दे सकती हैं. They can make great contribution to the society by bringing up their children according to the true spirit of Islam. It will surely help their children become good and useful citizens of Pakistan. वो अपने बच्चों की इस्लाम की हकीकी रूह के मुताबिक परवरिश करके माशरे के लिए अजीम खिदमत अंजाम दे सकती हैं. ये बात यकीनन इनके बच्चों को पाकिस्तान के अच्छे शहरी बनने में मदद करेंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट द स्ट्रेस एंड इंटोनेशन. स्ट्रेस क्या होता है? रीड द वर्ड्स केयरफुली एंड नोट द स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स इन दैम. बेटा, स्ट्रेस्ड वर्ड वो वर्ड होते हैं जिन अल्फाज को हम ज़ोर देकर नुमाया तौर पर पढ़ते हैं, यानी कि ऐसा वर्ड जिसको हम ज़ोर देकर पढ़ें तो ताकि वो प्रोमिनेंट हो जाए, वो स्ट्रेस वर्ड होता है. और इंटोनेशन क्या होता है कि जब हम इंग्लिश बोल रहे होते हैं तो कभी हम आवाज़ को मध्यम करते हैं और कभी हम आवाज़ को तेज़ कर लेते हैं. तो इस आवाज़ को एकदम से मध्यम करना और तेज़ कर देना, तो आवाज़ के इस उतार चढ़ाव को हम इंटोनेशन कहते हैं. यहाँ पर स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स की बात हो रही है. स्ट्रेस सिलेबल्स वो होते हैं जिनके ऊपर हम एक लफ्ज़ जिसके हिस्सों के ऊपर हम ज़ोर देकर अदा करें, वो स्ट्रेस सिलेबल्स होंगे. सिलेबल्स होते हैं यानी कि लफ्ज़ों पूरा एक वर्ड है, उस वर्ड में से कुछ उसका जो पार्ट है या कुछ उसके अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो सिलेबल्स होंगे, ठीक है ना. तो उनमें से स्ट्रेस सिलेबल वो होंगे जिनके ऊपर हम ज़ोर देंगे और अनस्ट्रेस सिलेबल्स वो होंगे जिनके ऊपर हम ज़ोर नहीं देंगे, ठीक है. जैसा कि यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनके जो कैपिटल सिलेबल्स हैं या कैपिटल अल्फ़ाबेट्स हैं वो स्ट्रेस सिलेबल को ज़ाहिर कर रहे हैं और जो स्मॉल लेटर से लिखे गए हैं वो अनस्ट्रेस सिलेबल को ज़ाहिर कर रहे हैं. तो वर्ड है हस्बैंड. हस्बैंड में से जो फर्स्ट 3 लेटर्स हैं HUS, ये है स्ट्रेस सिलेबल्स. देखें, बोल कर देख लें, हस्बैंड. हस के ऊपर हम ज़्यादा क्या कर रहे हैं, पार लगा रहे हैं, एनर्जी ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, ज़ोर दे रहे हैं, ठीक है. तो ये स्ट्रेस सिलेबल होंगे. और बैंड जो है उसको हम नॉर्मल तरीके से अदा कर रहे हैं, कोई ज़ोर नहीं लगा रहे इन 4 वर्ड्स के ऊपर, तो ये अनस्ट्रेस्ड होंगे. अबाउट, अबाउट में ए को नॉर्मल अदा कर रहे हैं, जबकि बाउट का जो वर्ड है उसको हम ज़ोर देकर पढ़ रहे हैं, तो वो कैपिटल वर्ड से लिखा हुआ है, स्ट्रेस सिलेबल में आएगा. अराइव, अराइव में ए जो है नॉर्मल बोला गया है, जबकि राइव का जो वर्ड है वो स्ट्रेस सिलेबल में आएगा क्योंकि हम उनके ऊपर ज़ोर दे रहे हैं, ठीक है. रिमार्केबल, रिमार्केबल में री नॉर्मल पढ़ा गया है यानी कि अनस्ट्रेस है. मार्क का जो वर्ड है वो हम ज़ोर देकर पढ़ रहे हैं तो स्ट्रेस सिलेबल में आएगा. और एबल का वर्ड जो है वो भी अनस्ट्रेस है. इम्पोर्टेंट, इम नॉर्मल, पोर स्ट्रेस में आएगा और टेंट जो है वो फिर अनस्ट्रेस में आ गया. फोटोग्राफी, फो नॉर्मल,
तो जो है स्ट्रेस में आया है और ग्राफी अनस्ट्रेस में आ गया है, ठीक है। इन अ डिक्शनरी द मार्क शोज द मेन स्ट्रेस इन अ वर्ड। किसी भी डिक्शनरी के अंदर ये जिस अलामत को मैंने अंडरलाइन किया, ये अलामत जो है ये लफ्ज़ के ऊपर दबाव को जाहिर करती है। इंटोनेशन, इंटोनेशन की डेफिनेशन दी हुई है, द राइज एंड फॉल ऑफ द वॉइस इन स्पीकिंग इज इंटोनेशन, कि जब आवाज़ के अंदर उतार और चढ़ाव होता है तो हम उसको इंटोनेशन कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है द वर्ड्स दैट आर इन बोल्ड शो द इंटोनेशन पैटर्न। नीचे कुछ दिए गए हैं, यहाँ पर 4 वर्ड्स दिए गए हैं, उनमें से जो बोल्ड हैं यानी कि जिनको गहरा करके लिखा गया है वो इंटोनेशन को जाहिर कर रहे हैं। डू यू लाइक इट, तो यहाँ पर जो डू का वर्ड है ये क्या कर रहा है, उतार चढ़ाव को, यानी कि हम डू को थोड़ा ज़्यादा फोर्सफुली बोलते हैं, फिर आगे यू लाइक इट नॉर्मल वे में बोलेंगे, तो जो डू का वर्ड है ये इंटोनेशन है, ठीक है। डू यू लाइक इट, यहाँ पर यू को ज़ोर से बोला है, डू यू लाइक इट, फिर आगे इसी तरीके से जिस जिस वर्ड को जहाँ जहाँ बोल्ड किया गया है वो सारे के सारे जो है वो इंटोनेशन वर्ड को जाहिर कर रहे हैं। हियर इज़ अ क्वेश्चन ए रिलेटेड टू दिस summary, stress and intonation. Find the stress words in the following paragraph. ये जो पैराग्राफ दिया गया है इसके अंदर से हमने स्ट्रेस वर्ड को मतलब के ढूंढना है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से स्ट्रेस वर्ड्स हैं। द प्रेपरेशन, तो प्रेपरेशन का वर्ड जो है वो स्ट्रेस वर्ड है। फॉर दिस जर्नी, जर्नी का जो वर्ड है वो भी स्ट्रेस वर्ड के अंदर आ रहा है। वॉज मेड एट द हाउस ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हाउस, हाउस का वर्ड भी हम जोर देकर बोल रहे हैं, हाउस का वर्ड हज़रत अबू बकर सिद्दीक, ये वर्ड भी क्या आ रहा है, स्ट्रेस वर्ड में आ रहा है। हज़रत अस्मा, हज़रत अस्मा भी स्ट्रेस में है। रेंडर्ड यूज़फुल, यूज़फुल सर्विसेज, ये दोनों वर्ड जो हैं ये स्ट्रेस में आ रहे हैं। इन दिस रिगार्ड, रिगार्ड का वर्ड भी स्ट्रेस में आ रहा है। शी प्रिपेयर्ड फूड फॉर दिस जर्नी, तो प्रिपेयर्ड का वर्ड आ रहा है यहाँ पर और जर्नी का वर्ड आ रहा है। उसके बाद देखिए शी टाइड इट ऑन द कैमल बैक विद हर ओन बेल्ट व्हेन नथिंग एल्स कुड बी फाउंड, तो यहाँ पर नथिंग का वर्ड जो है ये स्ट्रेस में आ रहा है। इसके अलावा फॉर दिस सर्विस शी वॉज गिवन द टाइटल ऑफ ज़ातुन नतकीन बाय द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो यहाँ पर ज़ातुन नतकीन का वर्ड आएगा और रसूल का वर्ड जो है ये स्ट्रेस वर्ड्स में आ रहा है। नेक्स्ट, हाउ मैनी सिलेबल्स द फॉलोइंग वर्ड्स हैव, सिलेबल्स के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी वर्ड के जो हिस्से होते हैं वो सिलेबल्स कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स उन्होंने दिए हैं और उन्होंने कहा आप बताएं हमें कि इनके कितने सिलेबल्स हैं, साथ में उनके मतलब के मीनिंग वगैरह भी। तो यहाँ पर पहला वर्ड है पॉलिटिकली, तो अगर हम इसको बोल कर देखें बेटा तो हम कितने हिस्सों में इस वर्ड को डिवाइड करते हैं, पॉलिटिकली, ठीक है। तो टोटल 4 हिस्सों में हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, पॉलिटिकली, यानी कि सॉरी 5 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो यहाँ पर पॉलिटिकली को हम उर्दू में ऐसे लिखेंगे, मतलब कि अगर हम इसकी प्रोनाउंसिएशन बनाएं या तलफ़ुज़ देखें, और इसका मानी है सियासी तौर पर। नेक्स्ट वर्ड इज़ पॉलिश, तो इसको हम 2 वर्ड्स में 2 सिलेबल्स इसके आएंगे, यानी कि हम इसको 2 वक्फ़ों में अदा कर देते हैं, पॉलिश, ठीक है। तो यहाँ पर चमकाना इसका मतलब है। नेक्स्ट वन इज़ पोल्का, पोल्का ये भी इसके भी 2 सिलेबल्स है, इसका मतलब है रक्स करना, पॉल, तो पॉल का सिर्फ एक ही सिलेबल है, यानी कि 1 सिलेबल है इसका, इंतखाब करना। पोलन, पोलन को भी 2 सिलेबल्स के अंदर हम करते हैं डिवाइड, और इसका मतलब होता है जरदाना, यानी कि जो फ्लावर होते हैं उनके ऊपर जो पोलन्स मौजूद होते हैं वो मुख्तलिफ कलर्स के होते हैं, तो उसको पोलन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बी, गिव प्रोनाउंसिएशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द प्रोनाउंसिएशन की बाय द गिवन इन योर डिक्शनरी। वो क्या कह रहे हैं कि प्रोनाउंसिएशन आप देखें कि क्या होगी अपनी डिक्शनरी की मदद से, डिक्शनरी के जो कीज़ होती हैं उनकी मदद से। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे एमिग्रेंट वर्ड है, उसको हमने अगर डिक्शनरी के रूप से देखें तो इंग्लिश में उसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे बनेगा, उर्दू में एमिग्रेंट, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ जब हमने पीछे ट्रांसलेशन की थी, तो उसमें हर उसके पैराग्राफ में मैंने आपको बताई थी प्रोनाउंसिएशन। इसका मतलब होता है तारकीन वतन, यानी कि ऐसे लोग जो कि अपने वतन को छोड़ दें। पेरिलस,
तो यहाँ पर ये उसके कीवर्ड्स में से आता है डिक्शनरी के, और पेरिलस ऐसे लिखा जाता है, इसका मतलब होता है ख़तरनाक। इन्फ्यूरिएटेड, इन्फ्यूरिएटेड यानी कि गुस्से में। नॉलेज ऐसे लिखा जाएगा और इसका मतलब है इल्म। आंसरिंग, तो इसका ये है मतलब कि अनसर्विंग यानी कि मुस्तकिल मिजाज, साबित कदम। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं एक्सरसाइज में जिनके हमने आंसर ढूंढने हैं। व्हाट हैपेंड व्हेन अबू जहल आस्क्ड हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत अबू बकर सिद्दीक के बारे में जब अबू जहल ने पूछा तो क्या हुआ। व्हेन अबू जहल आस्क्ड हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अबाउट हज़रत अबू बकर सिद्दीक, शी replied him by posing a counter question, how would I know? At this, Abu Jahl got infuriated and slapped Hazrat Asma radhiyallahu ta'ala anha. Second question, why was Hazrat Abu Quhafa worried? Hazrat Abu Quhafa was worried about the wealth because he thought that Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu had taken it. Next, question number 3, how did Hazrat Asma radhiyallahu ta'ala anha console her grandfather? Hazrat Asma radhiyallahu ta'ala anha put some pebbles at the place where her father used to keep money and jewels. Then she asked her grandfather to feel the presence of the wealth by placing his hand on it. Thus, she consoled her grandfather. Question 4, who was Hazrat Abdullah bin Zubair? Hazrat Abdullah bin Zubair रज़ियल्लाहु ताला अन्हु was the son of Hazrat Asma रज़ियल्लाहु ताला अन्हा. Fifth question, which incident in the story showed Hazrat Asma रज़ियल्लाहु ताला अन्हा love and respect for the Rasul सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? ऐसा कौन सा वाक़या जिससे जो है आप सल्लम से हज़रत अस्मा की मोहब्बत को ज़ाहिर करता है? When the Rasul सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was about to migrate to Medina, Hazrat Asma रज़ियल्लाहु ताला अन्हा made necessary अरेंजमेंट्स एंड प्रिपेयर फूड फॉर हिज जर्नी। तो हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जो ज़रूरी चीज़ें थी उनको पैक किया और उनके सफ़र के साथ खाना वगैरह लेकर पहुँची। दिस इंसिडेंट शो हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा डीप लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो वाक़या है ये हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत को ज़ाहिर करता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच इंसिडेंट इन द स्टोरी टेल्स अबाउट द जनरोसिटी ऑफ हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा? स्टोरी के अंदर ऐसा कौन सा वाक़या जो कि हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा की फ़याज़ी या सखावत को ज़ाहिर करता है? हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा इनहेरिटेड गार्डन, शी सोल्ड इट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल द मनी अमंग द पर्सन्स हु नीड इट। दिस शो हर जनरोसिटी। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा को विरासत में एक बाग मिला था जो कि उन्होंने गरीब और ज़रूरतमंद लोगों में बांट दिया। ये उनकी सखावत या फ़याज़ी को ज़ाहिर करता था। क्वेश्चन नंबर 7, What message do you get from the life of हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा? हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़िंदगी से आप क्या सबक हासिल करते हैं? The message that we get from her life is that being Muslim we should always be ready to face every hardship, to make every sacrifice for Islam. कि मुसलमान होने के नाते से इस्लाम की खातिर हर मुश्किल का सामना करना और हर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना, ये हमें उनकी ज़िंदगी से सबक मिलता है। Her life would always be a beacon of light for all of us. How? आपकी ज़िंदगी हमारे लिए हमेशा मशअला रहेगी, कैसे? She had firm faith in Allah and Rasul sallallahu alaihi wasallam. She had to face many hardship and difficulties in her life, but she never lost heart. She always showed great courage and wisdom. Therefore, her life would always be beacon of light for all of us. उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सी मतलब कि मुश्किलात या परेशानियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। और ये जो वाक़यात हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में, ये उनकी ज़ाहिर करते हैं कि उन्होंने कैसे अक्लमंदी और हौसले से मुज़ाहिरा करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारी। इसलिए उनकी ज़िंदगी हमारे लिए हमेशा मसले राह रहेगी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कैटाफोरिक रेफरेंस। कैटाफोरिक रेफरेंस क्या होता है? एन एक्सप्रेशन दैट रेफर्स टू अ लेटर एक्सप्रेशन इन द डिस्कोर्स इज कॉल्ड अ कैटाफोरिक रेफरेंस। कैटाफोरिक रेफरेंस से मुराद जुमले में बाद में जिक्र किए जाने वाली चीज़ की तरफ इशारा करना होता है। जैसा कि एग्जांपल दी गई है, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज कंपेनियन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना इन द ईयर 622 AD। यहाँ पर देखें
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहले जिक्र किया गया, उसके बाद उनके सहाबा का जिक्र करने के लिए हिज का वर्ड यूज़ किया गया, तो ये होता है कैटाफोरिक रेफरेंस, यानी कि पहले वर्ड के रेफरेंस से कोई दूसरा वर्ड अदा किया जाना, वो कैटाफोरिक रेफरेंस में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हिज कंपेनियन का वर्ड जो है वो कैटाफोरिक रेफरेंस में आएगा। नेक्स्ट वन इज एनाफोरिक रेफरेंस। An expression that refers to an earlier expression in the discourse is called an anaphoric reference. एनाफोरिक रेफरेंस क्या होता है कि एनाफोरिक रेफरेंस वो होता है जिसमें जुमले में पहले से बताई गई चीज़ की तरफ इशारा करना। ठीक है, यानी कि यहाँ पर एग्जांपल दी गई, हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वाज द अमंग्स्ट द अर्ली फ्यू हु एक्सेप्टेड इस्लाम। ठीक है, शी वाज द डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक। यहाँ पर हज़रत अस्मा का वर्ड जो है वो लिखा गया है और फिर उसके बाद उनके रेफरेंस के तौर पर शी का वर्ड यूज़ किया गया, यानी कि उनके पहले वाला जो है उससे एक्सप्रेशन से जाहिर किया जा रहा है इसको, तो इसको हम एनाफोरिक रेफरेंस में लेंगे। सो स्टूडेंट, देयर इज अ एक्टिविटी in question number D according to related to the anaphoric and cataphoric reference. First one is Abu Jahl, chief of the disbeliever, in a fit of fury headed for Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu home, he began knocking at the door violently. इसके अंदर हमने ये देखना है कि ये कौन सा रेफरेंस है, कैटाफोरिक है या एनाफोरिक है, तो ये कैटाफोरिक रेफरेंस है। कैसे पता चला? ऐसे पता चला कि अबू जहल का वर्ड यूज़ करके, ठीक है, और फिर उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का रेफरेंस दिया गया वहाँ से। सेकंड है हर ग्रैंडफादर अबू कुहाफा वाज अ डिसबिलीवर एट दैट टाइम। ये एनाफोरिक रेफरेंस है कि पहले बाद में हज़रत अबू कुहाफा का जिक्र किया गया, पहले उनका क्या दिया गया, रेफरेंस दिया गया कि वो क्या थे, दादा थे। थर्ड वन, व्हेन असलम वाज प्लेइंग क्रिकेट ही हर्ट हिज हैंडेड। ये भी एनाफोरिक रेफरेंस है। कैसे पता चला कि असलम का मतलब कि उसका जिक्र बाद में किया गया, पहले उसका नाम लिया गया, तो ये एनाफोरिक रेफरेंस में आएगा। बिफोर शी फिनिश द वर्क नीलम चेक द मिस्टेक वंस अगेन, तो ये कैटाफोरिक रेफरेंस है। अनीस थ्रू द स्टोन, एनाफोरिक रेफरेंस है। ही ब्रोक द विंडो, ये कैटाफोरिक रेफरेंस है। व्हेन शी एंटर्ड द रूम, ये एनाफोरिक रेफरेंस में आएगा। ज़ेबा वाज सरप्राइज टू सी सो मैनी गेस्ट, कैटाफोरिक रेफरेंस में आएगा। द सिटी ऑफ गार्डन, एनाफोरिक रेफरेंस है। उसके बाद दिस इज़ फेमस फॉर द हिस्टोरिकल प्लेस, ये कैटाफोरिक रेफरेंस में आएगा। नाउ वोकैबुलरी क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पर देख लेते हैं इसको दोबारा। क्वेश्चन नंबर ए है, अकॉर्डिंग टू वोकैबुलरी, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। इट वॉज सच अ डेलिकेट सिचुएशन, तो डेलिकेट का हमने यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर वोकैबुलरी में इसका क्या मतलब जो है इससे मिलता जुलता है। फर्स्ट वन इज डिफ़िकल्ट, ईजी, सेंसिटिव और फ्रेजाइल। तो डेलिकेट के अंदर आएगा सेंसिटिव, यानी कि नाजुक। ठीक है, ये इसका आंसर है। अबू जहल बिगेन नॉकिंग एट द डोर वायलेंटली। वायलेंटली का मतलब होता है गुस्से से। पोलाइटली, स्लोली, फोर्सफुली या एंग्रीली, तो यहाँ पर आएगा फोर्सफुली, यानी कि ज़ोरदार तरीके से। शी सिंपली पोज्ड अ काउंटर क्वेश्चन दैट इन्फ्यूरिएटेड अबू जहल। इन्फ्यूरिएटेड का क्या मतलब है, तो इन्फ्यूरिएटेड का मतलब गुस्सा दिलाना होता है। प्लीज्ड, फिर है हेल्प, फिर इंगेज्ड और एनोइंगली, तो यहाँ पर आएगा इनरेज्ड आएगा, यानी कि गुस्सा। क्वेश्चन बी, कंसल्ट अ डिक्शनरी to find the meaning of the following word phrase and use them in sentences। डिक्शनरी को यूज़ करना है और ये जो मीनिंग वर्ड्स दिए गए हैं या फ्रेजेस दिए गए हैं, इनके मीनिंग और यूजेज यानी कि सेंटेंस देखने हैं। फर्स्ट वन इज़ मैड विद एंगर, गुस्से से बेकाबू हो जाना। आमिर वॉज मैड विद एंगर एंड इंजर्ड हिज फ्रेंड विद अ नाइफ। फिट ऑफ फ्यूरी, गुस्से में आ जाना, तैश में आ जाना। नसीर इन अ फिट ऑफ फ्यूरी टर्मिनेटेड हिज सबऑर्डिनेट। रिवील्ड द सीक्रेट्स, राज अफशा कर देना या किसी का राज बता देना। एम्प्लॉयज़ आर नॉट अलाउड टू रिवील द सीक्रेट्स ऑफ देयर सीनियर्स। रेजोल्यूट, पुरअज़म, वी शुड रेजोल्यूट द फेथ इन अल्लाह। नेक्स्ट, अलेविएट, शिद्दत कम करना। द गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड टू अलेविएट द फ्रस्ट्रेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़। माइग्रेशन, हिजरत करना। द न्यूज़ ऑफ द माइग्रेशन ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्फ्यूरिएटेड द डिसबिलीवर्स। कंपेनियन, साथी। I travelled with Zain, who is my companion. Refuge, पनाह देना। When the firing started, the police took refuge in a building. Gave away, बांट देना। The
Man gave away his property among his sons. Next is grammar. First one is abstract noun. Abstract noun क्या होता है? Abstract noun is the name of a quality, action or state. Abstract noun are formed from adjective, verb and common nouns. किसी शख्स की खूबी, अमल या हालत का नाम होता है. इसके अंदर इसम सिफ्त और इसम नकरा से ये बनाए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शी फेस्ड एवरी कैलेमिटी ऑफ लाइफ विद पेशेंस एंड वेलर. तो यहाँ पर पेशेंस और वेलर का वर्ड जो है ये उसकी प्रॉपर्टी को जाहिर कर रहा है, यानी कि उसकी क्वालिटी को जाहिर कर रहा है. उसके बाद उन्होंने एक पैराग्राफ दिया हुआ है कि पैराग्राफ नंबर 4 जो बुक के अंदर आपका है उसमें से उन्होंने कहा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन ढूंढे. तो यहाँ पर माइग्रेशन का वर्ड जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. फिट एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. रिस्पॉन्स का वर्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है. विजडम, करेज, क्ल्यू, ठीक है, और सीकर्स. ये जितने भी वर्ड जो कि बोल्ड लेटर में लिखे हुए ये सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं. इसके बाद उन्होंने कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि आप उनको सेंटेंस में यूज़ करें. फर्स्ट वन इज़ करेज. ही टुक करेज एंड फायर्ड एट हिज एनर्जी. एम्प्टीनेस, खाली करना. द स्टूडेंट्स डू नॉट लाइक द एम्प्टीनेस ऑफ द हॉस्टल. डिफ़िकल्टी, मुश्किल. आई डू नॉट फील एनी डिफ़िकल्टी इन माई स्टडीज़. जेनरोसिटी, सखावत. टॉलरेंस एंड जेनरोसिटी आर नोबल डीड्स. रेजोल्यूशन, अज़म. ही मेड आ रेजोल्यूशन टू सर्व हिज कंट्री. सफरिंग, परेशानी. वी शुड सीक हेल्प ऑफ अल्लाह एट द टाइम ऑफ सफरिंग. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सी है, पुट आर्टिकल्स वेयर रिक्वायर्ड. यहाँ पर बेटा ये एक एक्टिविटी दी गई है कि आपने आर्टिकल्स लगाने हैं, जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ पर आर्टिकल लगाने हैं. सो फर्स्ट वन इज़ ट्रीज आर ग्रोन ऑन ईदर साइड ऑफ कैनाल. ठीक है, तो यहाँ पर ऑफ के बाद दा का वर्ड आएगा. ठीक है, यहाँ पर दा का वर्ड आएगा कैनाल के साथ. हर करेज एंड पेशेंस आर एग्जाम्पलरी. ठीक है, हर करेज एंड पेशेंस इज़ एग्जाम्पलरी आएगा, यानी कि पेशेंस के साथ आर का वर्ड नहीं आएगा बल्कि यहाँ पर इज़ का वर्ड आएगा. काइंडनेस एंड टॉलरेंस आर नोबल डीड्स. तो काइंडनेस एंड टॉलरेंस आर नोबल डीड्स, इसके अंदर ये बिल्कुल परफेक्ट मतलब कि सेंटेंस है. इसके अंदर कोई आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है. हायर यू गो कूलर इट इज़. दा, यहाँ पर हायर से पहले दा का वर्ड आएगा. दा हायर यू गो, दा कूलर इट इज़, यहाँ पर भी दा का वर्ड आएगा. नेक्स्ट वन 5, ही इज़ टॉलेस्ट बॉय इन हिज क्लास. तो यहाँ पर भी दा का वर्ड आएगा क्योंकि स्पेसिफाई कर रहे हैं उसको. डॉग, 6 वन इज़ डॉग इज़ फेथफुल एनिमल. तो डॉग से पहले दा आएगा. ठीक है, द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल. 7, इंडस इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन द पाकिस्तान. तो यहाँ पर इंडस के बाद इंडस इज़ के बाद दा का वर्ड आएगा यहाँ पर लार्जेस्ट से पहले. ठीक है, माउंट एवरेस्ट इज़ हाईएस्ट पीक इन वर्ल्ड. तो यहाँ पर माउंट एवरेस्ट इज़ दा, इसके बाद दा आएगा इन द वर्ल्ड. ठीक है, यहाँ पर भी आएगा. अलीज़े इज़ मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द स्कूल. तो इज़ के बाद दा का वर्ड आएगा उसको स्पेसिफाई करने के लिए. वेयर आर बुक्स विच आई बॉट अ वीक अगो. वेयर आर द बुक्स, यहाँ पर आर के बाद क्या वर्ड आएगा? दा का वर्ड आएगा. नेक्स्ट, प्रोपोजिशन ऑफ टाइम. प्रपोजिशन ऑफ टाइम देख लेते हैं क्या होते हैं. ऐसी प्रोपोजिशन जो कि टाइम से रिलेटेड हो, वक्त को जाहिर कर रही हो. तो इन, एट एंड ऑन, ये सारे के सारे प्रपोजिशन है. इनका यूज़ कहाँ पे? तो इनका वर्ड जो होता है ये मंथ में, ईयर में, सीज़न, पार्ट ऑफ द डे और ड्यूरेशन में यूज़ होता है. एग्जाम्पल दी गई है इन जून, इन सितंबर, इन ईयर में, विंटर में भी ऐसे मतलब कि सीज़न में इस्तेमाल किया गया. यहाँ पर पार्ट ऑफ द डे में इस्तेमाल किया गया है. ड्यूरेशन बताई गई है. नेक्स्ट, एट कहाँ पे यूज़ होता है? पार्ट ऑफ द डे में, टाइम ऑफ द डे में, सेलिब्रेशन के लिए या किसी फिक्स फ्रेज के लिए यूज़ होता है. फॉर एग्जांपल, एट नाइट, नून, मिडनाइट. एट 8 o'clock टाइम के लिए यूज़ किया जा रहा है. सेलिब्रेशन एट ईद के लिए यूज़ किया जा रहा है. और उसके अलावा फिक्स फ्रेज के लिए यानी कि सेम टाइम इस तरीके से यूज़ किया जा रहा है. ऑन का वर्ड जो है ये डेज ऑफ वीक में इस्तेमाल होता है, डेट के लिए इस्तेमाल होता है, स्पेशल हॉलीडे के लिए या स्पेशल पार्ट ऑफ द डे के लिए. फॉर एग्जांपल, ऑन संडे, ऑन फ्राइडे, ऑन द 20th of August, ऑन द इकबाल डे, ऑन द मॉर्निंग ऑफ अक्टूबर, एक्सेट्रा. क्वेश्चन नंबर ई, फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल प्रपोजिशन गिवन बिलो इज सेंटेंस. सेंटेंस दिए गए हैं, यहाँ पर हमने सूटेबल प्रपोजिशन जो है वो लगानी है. तो हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या आएगा. फर्स्ट वन इज़ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेटेड मक्का टू मदीना. तो यहाँ पर कौन सी जो है वो बेटर होगी? तो आई थिंक यहाँ पर फ्रॉम आएगा. माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना.
सेकेंड वन, अबू जहल डैश अ फिट ऑफ फ्यूरी हेडेड टुवर्ड हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु होम। तो यहाँ पर इन का वर्ड आएगा इन अ फिट ऑफ फ्यूरी। ही बिगेन नॉकिंग द डोर वायलेंटली। तो यहाँ पर एट आएगा, डोर के लिए एट का वर्ड। फोर, एट दिस शी इंस्टेंटली रैन डैश कॉर्नर ऑफ द होम। तो यहाँ पर आएगा टू, रैन टू अ कॉर्नर। फिफ्थ वन, शी हैज़ रेजोल्यूट फेथ अल्लाह अलमाइटी। तो यहाँ पर क्या आएगा, इन अल्लाह अलमाइटी। ठीक है। शी गेव ऑल द मनी टू द पुअर एंड द नीडी। शी गेव अवे। ठीक है। हर लाइफ वुड ऑलवेज बी अ बीकन डैश लाइट फॉर ऑल ऑफ अस। ऑफ, यहाँ पर वर्ड आएगा ऑफ का, बीकन ऑफ लाइट। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू द preposition। ठीक है। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दी गई हैं। अली इज अराइविंग ऑन। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक में ऑन आएगा। जनवरी एट 26 एट 2 o'clock। यहाँ पर हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि एट का वर्ड और ऑन का वर्ड इस तरीके से कहाँ यूज़ होंगे। साकिब इज़ लिविंग ऑन फ्राइडे। ठीक है। अशर हैज़ स्टार्टेड वर्किंग फॉर हिज लॉ फर्म इन 1995। इनका वर्ड जो है ईयर के लिए यूज़ करते हैं। आई मेट शाहीन एट का वर्ड फिक्स टाइम के लिए यूज़ किया जा रहा है 9 AM। द डॉक्टर विल सी अलीजे इन द इवनिंग। सोबिया हैज़ हर बर्थडे ऑन सितंबर, डेट के लिए यूज़ किया जा रहा है। वी विल हैव वेकेशन इन समर, सीजन के लिए इनका वर्ड यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर कोमा एंड फुल स्टॉप। यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया, वहाँ पर उन्होंने क्या पंक्चुएशन यूज़ करें। देखना है कि कौन सा वर्ड जो है यहाँ पर कैपिटल होगा, कहाँ पे कोमा लगेगा, कहाँ पे फुल स्टॉप। फर्स्ट ऑफ ऑल दी का टी जो है वो कैपिटल होगा। द रसूल एंड हिज क्लोज कंपेनियन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु माइग्रेटेड। अबू बकर का ए कैपिटल, हज़रत का एच कैपिटल, बकर का बी कैपिटल, सिद्दीक का एस कैपिटल। माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना। ठीक है। मक्का का एम कैपिटल आएगा, मदीना का एम कैपिटल आएगा। इन द ईयर 622 ए कैपिटल, ए डी का ए कैपिटल और डी दोनों कैपिटल आएंगे। ठीक है। और यहाँ पर फुल स्टॉप आ जाएगा इसके बाद, ए डी के बाद फुल स्टॉप। ऑन का ओ कैपिटल आ जाएगा क्योंकि नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। ऑन देयर वे टू मदीना, मदीना का एम कैपिटल आ जाएगा। इसके अलावा दे सॉट टेम्परेरी रिफ्यूज इन द केव ऑफ सोर। तो यहाँ पर सोर का जो टी है वो कैपिटल आ जाएगा और लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बी, राइटिंग स्किल्स के लिए राइट अ करेक्टर और स्केच ऑफ हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा। तो ये हम क्वेश्चन जो है अच्छे तरीके से पहले कर चुके हैं कि हज़रत अस्मा का करेक्टर जो है ये हम पहले जो फर्स्ट में क्वेश्चन किया था ये उसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आप ये आंसर लिख सकते हैं फर्स्ट वाले का। आई होप बच्चों आपको इसकी अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। जहाँ पर जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स सेंटेंसेस वगैरह बताए गए हैं आपने उनको अच्छे तरीके से तैयार करना है, अपनी वोकेबलरी को इन्हांस करना है, राइटिंग स्किल्स को देखना है, ओरल एक्टिविटी के क्वेश्चंस को देखना है और इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। ये आपका होमवर्क है। ठीक है बच्चों, आपके लिए हर मज़मून की वीडियोस इसी यूट्यूब चैनल पर दस्तयाब है। आप अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आएँ तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली हर वीडियोस से आगाह रहें। शुक्रिया।